محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصینا مولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا انات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الریاح وبرحمته وصفور میدان عدہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید ہو اخلاص له النبی صفت ان کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد سناہ فمن سناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشارہ الیہ فقد عادہ فمن عادہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل عباد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز اکھات میں قرآن اکھات میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے مزاج مولا کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھو. اجازت ہے بات شروع کی جائے. قرآن کی سب سے مختصر سورت کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ رسول کو ابو جہل کے طانے سے بچا رہا. کافروں کے طانے سے اللہ اپنے حبیب کو بچا رہا. جب بھی رسول گھر سے نکلتے ابو جہل اور کچھ کافر رسول سے کہتے کہ اے محمد کب تک تمہارا یہ دین پھیلے گا؟ تمہارا تو کوئی وارث ہی نہیں. وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے اور تمہارا کوئی بیٹا نہیں. کب تک تمہارا یہ دین پھیلے گا؟ کون پھیلائے گا تمہارا یہ دین؟ تم چلے جاؤ گے اس کے بعد اس دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ کون پھیلائے گا؟ ابھی رسول خاموش تھے کہ رسول کو اپنے قدموں پہ جبرائیل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. رسول نے جیسے ہی اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے ہاتھ باندھ کے کہا اے میرے حبیب اللہ کہہ رہا ہے آپ خاموش رہے. انا اعطینا کل کوثر ہم تمہیں فاطمہ عطا کریں گے. ہم تمہیں سیدہ عطا کریں گے. ہم تمہیں بطول عطا کریں گے. اور جب بھی لفظ بطول آتا ہے تو بطول کا مطلب کسی کا نام نہیں. بطول ایک عہدہ ہے. جیسے
मर्दों में इमामत का होता है, रिसालत का होता है, खिलाफत का होता है, ऐसे ही खवातीन में एक ओहदा है, उस ओहदे को बतूल कहते हैं। उस ओहदे को बतूल कहते हैं। और बतूल हर कोई अपनी तरफ से नहीं बना सकता, बल्कि अल्लाह बना के भेजता है। अल्लाह बना के बतूल भेजता है। और कायनात में सिर्फ दो ही खवातीन हैं जो बतूल है। एक ईसा की माँ बतूल है, एक हुसैन की माँ बतूल है। ईसा की माँ मरियम बतूल है, हुसैन की माँ ज़हरा बतूल है। मरियम बतूल सुगरा है, ज़हरा बतूल कुबरा है। मरियम का एक पिसर मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम हैं। मरियम को अल्लाह की तरफ से खाने पक पक के आते हैं, जन्नत की तरफ से खाने आते हैं, और ज़हरा के घर से खाने पक पक के जन्नत में जाते हैं। मरियम के लिए खाने जन्नत से आ रहे हैं, ज़हरा के घर से खाने फरिश्ते लेके जा रहे हैं। और मरियम जब बैठी है, जनाब मरियम, तवज्जो एक बंदे की एक मुकाम तक लेके जाना चाह रहा हूं। जनाब मरियम बैठी है हुजरे में, फरिश्ता आया और उसने आके कहा कि मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूं और बेटा देने आया। तो जनाब मरियम ने कहा, मैं तेरी पनाह चाहती हूं अगर तू मुत्तकी नहीं है तो। उसके बाद उन्होंने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूं। मरियम के दरवाजे पे फरिश्ता आया है और फरिश्ता आके कह रहा है, मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूं, मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूं। यही फरिश्ता जब दहलीज़े सैयदा पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी, फिजा ने कहा, कौन है? अंदर से जिब्रील ने आवाज देके कहा, मिस्कीन हूं, रोटी लेने आया हूं। अच्छा, यहाँ बेटा देने आया, वहां रोटी लेने आया हूं। यहाँ आके ओहदा बता रहा है कि मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूं। और यहाँ जिब्राइल ने दरवाजे पे दस्तक दी, फिजा ने कहा, कौन है? कहा, दर्जी हूं, कपड़े लेके आया हूं। फिजा ने कहा, खामोश, मैं जानती हूं तू जिब्राइल है, मैं जानती हूं तू जिब्राइल है। मरियम बतूले सुगरा, ज़हरा बतूले कुबरा। और कायनात पे, दुनिया वालों पे उस वक्त दोनों बतूलों का ओहदा सबके ऊपर अयां हो जाएगा जब दोनों का बेटे आएंगे। एक मर्तबा दोनों को बेटों को आने दो। मरियम का बेटा ईसा भी इस दुनिया में आएगा, ज़हरा का आखिरी बेटा भी इस दुनिया में आएगा। नमाज का वक्त होगा, ज़हरा का बेटा आगे खड़े होकर आवाज देके कहेगा, ए मरियम के बेटे आइए और आके नमाज पढ़ाइए। उस वक्त ईसा दुनिया वालों को ये बता देंगे कि ज़हरा के बेटे के आगे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मरियम का बेटा कहेगा, मैं आपके आगे नमाज कैसे पढ़ूं, आप तो ज़हरा के बेटे हैं। ईसा दुनिया वालों को पैगाम देना चाह रहे, दुनिया वालों अकीदा दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा किसी नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे नमाज कैसे पढ़े? जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, उसका बाप और उसका शोहर किसी बुत परस्त के पीछे नमाज कैसे पढ़े? दहलीज़े सैयदा पे तारे उतर रहे और मरियम के घर पे खाने आ रहे हैं, लेकिन दहलीज़े सैयदा पे अल्लाह सितारे भेज रहा और दुनिया वालों को सैयदा की दहलीज का मकाम बता रहा। बात दहलीज तक आ गई, बात करके आगे बढ़ूं। सलमान बैठे थे और लोगों को लगा कि सलमान दहलीज़े सैयदा पे अपनी दाढ़ी से झाड़ू देते थे। झाड़ू नहीं देते थे, रात के दहलीज़े सैयदा पे गिरे हुए सितारे अपनी दाढ़ी में पिरोते थे। रात के गिरे हुए सितारे अपनी दाढ़ी में पिरोते थे। सलमान दहलीज़े सैयदा पे सजदा करते थे। सलमान बैठे हुए थे, दहलीज़े सैयदा पे एक शख्स गुजरा और उसने कहा कि सलमान, क्या हर वक्त तुम इसी दहलीज पे बैठे रहते हो? क्या मिलता है तुम्हें इस दहलीज से? सलमान ने सर उठा के उसकी तरफ देखा और उसने कहा, क्या कहा तूने? उसने कहा, क्या मिलता है तुझे इस दहलीज से? सलमान ने आवाज देके कहा, शर्म नहीं आती? दहलीज नहीं, मेरी सिदरतुल मुंतहा है। दहलीज नहीं, सिदरतुल मुंतहा है। कहा सलमान बूढ़ा हो गया है, पागल हो गया है।
सिदरतुल मुंतहा उस मकाम को कहते हैं कि जब रसूल महराज पर गए तो फरिश्ते ने एक मुकाम आया जहां फरिश्ते ने रुक के कहा कि ऐ मेरे हबीब, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा उस मकाम को कहते हैं। सलमान ने कहा तेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहां फरिश्ता रुके, मेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहां मोहम्मद जैसा नबी रुक के सलाम करे। मेरी सिदरा वो है जहां मोहम्मद जैसा नबी रुक के सलाम करे। दौड़ा, मस्जिद में पहुंचा रसूल के पास। या रसूल अल्लाह, बूढ़ा होने की वजह से देर से नहीं आता, बल्कि जब अजान होती है तो पहले दहलीज़े सैयदा पे जाके सजदा करता है, फिर नमाज पढ़ने आता। बुलाओ सलमान को। सलमान को बुलाया। रसूल ने कहा सलमान, अजान होती है तो पहले मस्जिद में आया जाता, हमने सुना है तुम पहले दहलीज़े सैयदा पे जाते। तो सलमान ने मुस्कुरा के कहा, एक एक बंदे की तवज्जो जुमले पे। सलमान ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह, आपके इन प्यारे प्यारे सहाबा को समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक घर में बतूल राजी ना हो तब तक मस्जिद में अल्लाह राजी नहीं होता। बाबा से बुलंद सलावत। जब तक घर में ज़हरा राजी ना हो तब तक मस्जिद में अल्लाह राजी नहीं होता। एक शख्स इमाम अली नकी की बारगाह में हाजिर हुआ और इमाम की बारगाह में हाजिर होकर उसने कहा कि मौला, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी जबान से आपकी जद्दा के फजाइल सुनूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके जबान से आपकी जद्दा, आपकी दादी ज़हरा के फजाइल सुनूं। इमाम ने एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा, सुनना। इमाम ने एक नजर उसके चेहरे की तरफ देख के कहा इंसान है, तू इंसान है, तेरा ज़र्फ इस काबिल है, तेरा ज़र्फ मुतहम्मल है कि तू मेरी जबान से मेरी दादी के फजाइल सुने। लेकिन चल, अगर तू आ गया है और तूने पूछ लिया है तो फिर सुन। आज ज़हरा का बेटा बताए कि ज़हरा कौन है। इमाम फरमाते हैं कि मेरी दादी वो है कि जिस पर मैं नमाज में भी दरूद भेजता हूँ। मेरी दादी वो है कि जिस पर मैं मिंबर पर बैठ के भी दरूद भेजता हूँ। मेरी दादी इस्मत का सहीफा है। इमाम अपनी दादी के फजाइल सुना रहे हैं। इमाम फरमाते हैं मेरी दादी इस्मत का सहीफा। मेरी दादी कौन है? इमाम फरमाते सुन, अगर तू सुनना चाहता है तो सुन। जिब्राइलो मस्कीनो जनाबेहा, जिब्राइलो मस्कीनो जनाबेहा, मीकाइलो साइलुन बाबेहा, इसराफीलो अब्दुन तुराबेहा, व इजराइलो अदुवु अस्हाबेहा। जिब्राइल जिसके दरवाजे का मिस्कीन है, जिब्राइल जिसके दरवाजे का मिस्कीन है, अपनी मर्जी के किसी भी बंदे से पूछ लेना कि मिस्कीन का मतलब क्या है। मिस्कीन का मतलब है कमतर, सबसे छोटा। इमाम फरमाते हैं जो अर्श पे सबसे आगे बैठता है हमारे दरवाजे पे सबसे पीछे बैठता है। हमारे दरवाजे पे सबसे पीछे बैठने का। मीकाइल साइलुन बाबेहा, मीकाइल जिसके दरवाजे का साइल है। मीकाइल कौन है? फरिश्ता है। इसका काम क्या है? रिस्क बांटना। इमाम फरमाते हैं ये जो बांटता है हमारी दादी की दहलीज से लेके बांटता है। इसराफील अब्दुल तुराबेहा, इसराफील इसकी मट्टी का बंदा है, इसराफील इसकी तुराब का बंदा है। व इजराइलो अब्दुवु अस्हाबेहा, इजराइल इसके सहाबियों के, इसके दोस्तों के दुश्मन का दुश्मन है, इसके चाहने वालों के दुश्मन का दुश्मन है इजराइल। इमाम अभी सैयदा के फजाइल बयान कर रहे थे कि उसका रंग जर्द हो गया, कपकपी तारी हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, कांप रहा है उसका बदन। इमाम ने कहा तुझे किसने कहा था कि मेरी दादी के फजाइल मुझसे सुनो? तुझे किसने कहा था कि मेरी दादी के फजाइल मुझसे सुनो? चल, आज सैयदा के बेटे का भी दिल करता है कि वो सैयदा के फजाइल सुनाए। सुन, मेरी हमारे जद रसूल खुदा पर 2 कुरान नाजिल हुए। नज़लल कुरानैन अला जद्देना, हमारे रसूल पर 2 कुरान नाजिल हुए। उसने कहा मौला मैंने तो सुना है कुरान एक है।
इमाम ने कहा नहीं, कुरान दो है, दो कुरान हमारे रसूल पर नाजिल। उसने कहा मौला, एक कुरान तो वो है जिसे हम पढ़ते, दूसरा कुरान कौन? तो इमाम ने फरमाया दूसरा कुरान हमारी दादी ज़हरा है, दूसरा कुरान मेरी दादी ज़हरा। उसने कहा मौला, पहला कुरान तो फरिश्ते लेके आए, लेकिन दूसरा कुरान कैसे नाजिल हुआ, मुझे ये बताएं। तो इमाम ने कहा कि पहला कुरान खुद फरिश्ते लेके आते रहे, लेकिन दूसरा कुरान लेने के लिए हमारे दादा को जन्नत पे जाना पड़ा, मेराज पे जाना पड़ा, हमारे जद को खुद जाना पड़ा दूसरा कुरान लेने। उसने कहा मौला, जैसे पहला कुरान आया था ऐसे ही दूसरा कुरान भी आ जाता। इमाम ने कहा होश कर, जिब्राइल में इतनी तहारत कहाँ कि वो इस दूसरे कुरान को हाथ लगा सके। जिब्राइल में इतनी तहारत कहाँ, फरिश्तों के हाथ भेज नहीं सकता था, खुद आ नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा कि ऐ मेरे हबीब तू मेराज पर आ जा, मैं तुझे दूसरा कुरान देना चाहता हूं। और फिर सैयदा रसूल को अता की अल्लाह ने, और वो सैयदा के जिसके एहतराम में रसूल खुद खड़े हो रहे, दरवाजे पे आके रसूल सलाम करते हैं और सलाम करके कहते हैं कि ए अहले बैत नबूवत तुम पर मेरा सलाम हो। जब बेटी सामने से गुजरती है, बाप बेटी के एहतराम में खड़ा हो रहा है, लेकिन लोगों ने इस एहतराम को समझा नहीं। और जैसे ही रसूल इस दुनिया से गए, कुछ लोग आग लेके दरवाजे सैयदा पर पहुंच गए, दरवाजे को जलाने के लिए पहुंच गए। आखिरी वक्त है जनाबे खतीजतुल कुबरा का, और रसूल जनाबे खतीजा के पास बैठे हैं, और एक कोने पे दीवार का सहारा लेके सैयदा खड़ी। रसूल की आंखों में आंसू हैं। जनाबे खतीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, परेशान लग रहे हैं, बोलिए क्या हुआ। रसूल ने आवाज देके कहा कि खतीजा, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे अपनी जिंदगी में कुछ मांगो। तो जनाब खतीजा ने रो के कहा या रसूल अल्लाह, मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने मांग लिया और आप अता ना कर सके, अगर मैंने मांग लिया और आप अता ना कर सके तो फिर क्या होगा। रसूल ने कहा खतीजा, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, इस कायनात का नबी हूँ, मांगो क्या मांगना है। अज़ादारो, इतना कहना था कि ऐसे जैसे माँ इंतजार में थी, माँ ने आवाज देके कहा ज़हरा मेरे करीब आओ। अज़ादारो, बीबी को करीब बुलाया, बीबी को करीब बुला के एक हाथ में ज़हरा का हाथ पकड़ा, एक हाथ में रसूल का हाथ पकड़ के माँ ने बाप के हाथ में बेटी का हाथ थमाया और आवाज देके कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे वादा करें मेरे बाद मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मेरे बाद मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इतना कहना था कि रसूल ने फौरन हाथ पीछे किया और रो के कहा कि खदीजा, मैं वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इतना कहता था, बीबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, इसका क्या मतलब है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक मेरी बेटी रोएगी नहीं, आपके बाद क्या होगा। इतना कहना था, रसूल ने दो उंगलियां बुलंद की और कहा कि ऐ खदीजा, जरा मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। इतना कहना था, जनाब खदीजा ने देखा, तड़प के कहा या रसूलल्लाह, हाथ हटा लीजिए। आवाज दी, खदीजा क्या देखा। आवाज के कहा मैंने देखा एक काले बुर्के वाली बीवी है जो दरबार में खड़ी है, एक काले बुर्के वाली दरबार में खड़ी है बीबी। खदीजा गौर से पहचानो, यही तुम्हारी बेटी फातिमा ज़हरा है। इतना कहना था, खदीजा जरा दोबारा देखो। अब जो जनाब खदीजा ने देखा तो तड़प गई और कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप हाथ हटा लीजिए। इतना कहना था, रसूल ने कहा खदीजा क्या देखा। तो रो के कहा या रसूल अल्लाह, कोई काले बुर्के वाली बीवी है, उसके दरवाजे पे आग लगी है, किसी ने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा उसके ऊपर आके गिरा। रसूल रो के कहते खदीजा पहचान, यही तेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। खदीजा, यही तेरी बेटी फातिमा ज़हरा
चली बीबी और दरबार में पहुंची। अज़ादारो दरबार कितनी दूरी पर था, ना किसी दूसरे शहर में था, ना किसी दूसरे मोहल्ले में था, सिर्फ 25 कदम का फासला था दरबार में और सैयदा के घर में। 25 कदम चल के गई है बीबी, 25 कदम चल के वापस आई है। अज़ादारो जब गई थी सारे बाल काले थे, लेकिन जब वापस आई है सर पे एक भी बाल काला नहीं था। बीबी घर आई, जनाबे ज़ैनब ने रोके कहा अम्मा फिदक का इतना गम मनाया कि सारा सर सफेद कर दिया। आवाज देके कहा ज़ैनब लाखों फिदक मेरे बच्चों पर कुर्बान, मुझे फिदक का गम नहीं है। लेकिन ज़ैनब मैंने बाजार में दरबार में अजब मंजर देखा। कहा अम्मा क्या देखा? रोके कहा ज़ैनब मैंने दरबार में शराबियों के मजमे में हाथ बंधे तुझे खड़ा देखा। ज़ैनब मैंने दरबार में हुसैन के गले पे खंजर देखा। मातम सैयदा Hussein.